لاسٹ سنڈے کا میسج تھا خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے خداوند یسوع مسیح کون ہے، اور ہم نے 3 پوائنٹ دیکھے تھے۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام مجسم ہوا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ ہاللیلویہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کلام ہے، خداوند یسوع مسیح کلمہ ہے، خداوند یسوع مسیح ورڈ ہے۔ اور پھر ہم نے سیکھا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کریٹ کرنے والا ہے۔ خدا نے کہا روشنی ہو جا، تو جو کہا ہے وہ کیا ہے؟ کلام ہے، اور کلام کیا کر رہا ہے؟ روشنی بنا رہا ہے۔ جو خدا کہتا گیا وہ وجود میں آتا گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ کلام کیا ہے؟ کریٹ کرنے والا ہے۔ کلام کیا ہے؟ بنانے والا ہے۔ کلام تخلیق کرنے والا، اور کلام کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے۔ کلام تخلیق کر رہا ہے، کلام بنا رہا ہے۔ اور پھر ہم نے کیا سیکھا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نجات دہندہ ہے۔ وہ آدم اور حوا جو گناہ میں گر گئے، ان کے لیے خدا نے برہ مہیا کیا۔ ہاللیلویہ۔ اور خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے نجات دہندہ بن کر اس دنیا میں آئے۔ ہاللیلویہ۔ اور ہمیشہ کی زندگی کیا ہے؟ ہم نے یہ بات بھی سیکھی تھی، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائی واحد کو جانے۔ خداوند یسوع مسیح کو جاننا کیا ہے؟ یہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ یہ میرے ساتھ دیکھیں خدا کے کلام میں سے پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب اور 26ویں آیت۔ پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چپائوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ پھر پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی 28ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ خدا نے آدم اور حوا کو بنایا، اور خدا نے ان کو کیا دی؟ اتھارٹی بخشی۔ خدا نے ان کو اختیار بخشا۔ ہوا کے پرندوں پر، جانوروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، سمندر کی تمام مچھلیوں پر، یعنی تمام مخلوق پر خدا نے آدم کو کیا بخشا؟ اختیار بخشا۔ آدم کو اتھارٹی بخشی، آدم کو طاقت بخشی، قوت بخشی۔ لیکن جب گناہ ہو گیا، گناہ کے باعث انسان نے، بنی آدم نے اپنی اس اتھارٹی کو لوز کر دیا، اور جب اتھارٹی لوز ہوتی ہے تو پھر پوزیشن بھی لوز ہوتی ہے۔ جب ہمارا اختیار ہم سے چھن جاتا ہے، آدم کا جب اختیار چھن گیا، وہ اختیار اپنا گنوا بیٹھا، تو پہلے جب اس کے پاس اختیار تھا، اس کے پاس زوئے لائف تھی، اس کے پاس خدا کی زندگی تھی، اور جب اختیار اس کے پاس تھا، جب زوئے لائف اس کے اندر تھی، جب خدا کی سی زندگی اس کے اندر تھی، تو وہ خدا کے ساتھ رفاقت رکھتا، خدا کے ساتھ چلتا پھرتا، خدا کے ساتھ گفتگو کرتا، خدا کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا۔ لیکن جب اتھارٹی کو لوز کیا، تو جہاں وہ خدا کے ساتھ بیٹھتا تھا، پھر اسے باغ عدن سے باہر بیٹھنا پڑا۔ کیسی حیرانگی کی بات ہے! جو جانور آدم سے خوف زدہ تھے، اب گناہ کے باعث آدم خوف زدہ ہے۔ اور کیا باغ عدن کے اندر لکھا ہے؟ کلام کے اندر کیا لکھا ہے؟ بائبل مقدس کے اندر کیا لکھا ہے کہ جب آدم نے گناہ کیا تو اس نے اپنی اتھارٹی کو کیا کیا؟ لوز کیا۔ جب خدا ساتھ تھا تو کیا ہوا؟ آدم جانوروں کے اوپر ہیوی تھا، لیکن جب خدا الگ ہو گیا، خدا جدا ہو گیا، خدا سے رفاقت ٹوٹ گئی، تو پھر کیا ہوا؟ وہی آدم اب ان جانوروں سے،
उन फल फूल पौधों से वो खौफजदा है। और कलाम के अंदर लिखा है कि जब खुदा ठंडे वक्त में आदम से बातें करने के लिए आता था, तो वही आदम जो खुदा का इंतज़ार करता था कि अब मैं खुदा से बातें करूंगा, लेकिन फल खाने के बाद, नाफरमानी करने के बाद उसने अपने आप को खुदा से छुपा लिया, अपने आप को दरख्त के पीछे, अपने आप को पत्तों के पीछे छुपा लिया। इसका मतलब क्या है कि उस अथॉरिटी को उसने गंवा दिया। और जब खुदा की दी हुई अथॉरिटी को आदम और हवा ने गंवा दिया, तो उसके बदले में आदम और हवा को क्या मिला? मौत मिली, बीमारी मिली, दुख, दर्द, तकलीफ़ें, खून, पसीना, ये सब कुछ उसको मिला। और आज आपसे मेरा सवाल है कि अगर बागे अदन के अंदर आप आदम की जगह पर होते तो उस वक्त आप क्या करते? अगर आज हमारे लिए गुनाह पर गालिब आना मुश्किल है, बाज़ औक़ात हम सोचते हैं कि अगर बागे अदन में हम होते तो शायद हम फल ना खाते। लेकिन अगर आज आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपके लिए एक छोटा सा झूठ बोलना मुश्किल है, तो आदम के लिए कितना वो गुनाह करना मुश्किल था या आसान था। अगर आप ये समझते हैं कि मेरे लिए ये काम करना मुश्किल है, तो आदम के लिए कितना दुश्वार होगा। शायद हमारे लिए मुश्किल है गुनाह पर गालिब आना। हम यहाँ पर बैठकर बड़ी आसानी से कह देते हैं कि शायद काश अगर मैं आदम की जगह पर होता या मैं हवा की जगह होती तो मैं कभी गुनाह ना करती, मैं कभी नाफरमानी ना करती। लेकिन अगर आज गालिब आना मुश्किल है तो उस वक्त गालिब आना भी मुश्किल था। और उस अथॉरिटी को जो आदम और हवा ने लूज किया कि पहले जानवर उसके पास आते, हो सकता है आदम और हवा उन जानवरों से गुफ्तगू भी करते, उनसे बातें भी करते। सांप बोलता था ना, जब सांप ने हवा को बहकाया तो सांप गुफ्तगू करता था। जब सांप बोलता है तो इसका मतलब है दूसरे जानवर भी बोलते होंगे, वो भी बातचीत करते होंगे। और आदम ने उनके नाम रखे, और जिनके नाम रखे जाते इसका मतलब है वो पर्सनैलिटी है, वो शख्सियत है, वो एक किरदार है, चाहे वो जानवर ही है। लेकिन जब आदम ने उनके नाम रखे तो इसका मतलब है खुदा आदम उनको नाम लेकर बुलाता था। हाथी है तो हाथी का नाम लेकर बुलाता था, शेर है तो शेर का नाम लेकर बुलाता, कोई परिंदा है, उकाब है तो उसका नाम लेकर आदम बुलाता था। लेकिन जब गुनाह हो गया, उस अथॉरिटी को लूज किया, उस इख्तियार को लूज किया, वही जानवर आदम से दूर हो गए, आदम खौफजदा हो गया। अब उस अथॉरिटी को वापस कैसे लिया जा सकता है? कैसे हम उस इख्तियार को वापस ले सकते हैं? कैसे हम उस इख्तियार को जो खुदा ने हमें दिया था बागे अदन के अंदर, गुनाह के बाइस वो इख्तियार छिन गया, हम कैसे वापस ले सकते हैं? बाज़ औक़ात हम सोचते हैं हम नेकियां करके, हम अच्छे अमाल करके, हम कलाम पर अमल करके, 10 हुक्मों पर अमल करके, 613 हुक्म जो शरीयत के हैं, हर एक हुक्म पर अमल करके हम इख्तियार को हासिल कर सकते हैं। लेकिन कलाम में लिखा है हर जान, हर ज़िंदगी ने गुनाह किया, तमाम ज़िंदगियों ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। कोई भी ज़िंदगी जो है अपने कामों से, नेक अमाल से उस अथॉरिटी को, उस इख्तियार को वापस हासिल नहीं कर सकती। लेकिन कैसे हम कर सकते हैं? कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 2 बाब देखिए। कुलसियों के नाम, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है ज़रूर खोलिए, और अगर आप पढ़े लिखे हैं अपने साथ बाइबल को लेकर आया करें। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का 2 ख़त, उसकी 9वीं और 10वीं आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है, और तुम उसी में मामूर हो गए हो, जो सारी हुकूमत और इख्तियार का सर है। कुलसियों 2 बाब 14वीं 15वीं आयत के अंदर लिखा है, और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया, और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। हालेलुया। सलीब के सबब से,
जो कोई भी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के नीचे आएगी वो उस इख्तियार को वापस हासिल करेगी। बागे अदन के अंदर इब्लीस का इख्तियार हमारे ऊपर आ गया, इब्लीस की अथॉरिटी हमारे ऊपर आ गई, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के वसीले से खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर, हमारी बीमारियों को अपने ऊपर लेकर, हमारी नाफरमानियों को अपने ऊपर लेकर, हमारी तंग दस्तियों को, लाइलाज बीमारियों को, हर तरह की नाराजगी, हर तरह की गंदगी को, उसकी सजा को अपने ऊपर लेकर खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर सलीब पर फतह का शादियाना बजाया। हालेलुया। और उसी इख्तियार को यीशु मसीह के वसीले से, उसकी सलीब के वसीले से हम वापस हासिल करते हैं। हालेलुया। और सिर्फ शागिर्दों के लिए नहीं बल्कि हर वो जिंदगी, चाहे वो किसी भी कौम से है, चाहे वो किसी भी कबीले से है, चाहे वो किसी भी रंग और नस्ल से है, चाहे किसी भी कौम से उसका ताल्लुक है, जो कोई खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के नीचे आ जाएगा वो फतह से बढ़कर गलबा पाएगा। और वो अथॉरिटी जो बागे अदन में ज़ोए लाइफ खुदा ने उसे बख्शी थी, वो ज़ोए लाइफ, इटर्नल लाइफ, हमेशा की जिंदगी, खुदा की सी जिंदगी उसके अंदर फिर से काम करना शुरू करेगी। हालेलुया। लेकिन कैसे? खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के नीचे आने के वसीले से, यीशु मसीह को कबूल करने के वसीले से। वही इख्तियार खुदावंद हमें फिर से अता करते हैं। लूका की इंजील 10वां बाब निकालिए, उसका 18वीं आयत। लूका की इंजील 10वां बाब 18वीं और 19वीं आयत। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया। हालेलुया। देखो मैंने तुमको क्या दिया? इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा। हालेलुया। देखो मैंने तुमको क्या दिया? इख्तियार दिया है। खुदावंद यीशु मसीह के पास वो इख्तियार है, और वो इख्तियार उसने किसको दे दिया है? अपने शागिर्दों को दे दिया। उसने इख्तियार कलीसिया को दे दिया, उसने इख्तियार ईमानदारों को दे दिया, उसने इख्तियार खुदा बाप के बेटे बेटियों को दे दिया है। हर किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं है, हर किसी के पास ये इख्तियार नहीं है। सिर्फ उन्हीं के पास है जिन्होंने अपने आप को बर्रे के लहू से धोया है, जिन्होंने तौबा की है, जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने अपनी रूह जान बदन से, अपने लबों से, अपने दिल से, अपने होंठों से खुदावंद यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, अपना नजात दहिंदा कबूल किया है। उनके पास ये इख्तियार है। और क्या इख्तियार है? कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। हालेलुया। सांप का काम क्या है? वो डसता है। सांप का काम क्या है? वो खौफजदा करता है। सांप का काम क्या है? वो जहर उगलता है। सांप का काम क्या है? वो काटता है। और उसको देख ही कर बहुत से लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, बहुत से लोग खौफजदा हो जाते हैं, और उसके काटने से, जहर के छोड़ जाने से लकवा मार जाते हैं, लोग चंद सेकंड्स के अंदर मर जाते हैं। सांपों को कुचलने का इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह ने दिया है। हालेलुया। और गतसमनी बाग के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने सांप के सर को कुचल डाला, और वो ही कुचलने का इख्तियार उसने अपने बेटे बेटियों को भी दिया है। सिर्फ सांपों को नहीं बल्कि बिच्छुओं को भी कुचलने का। और बिच्छू बड़ा खूबसूरत जानवर लगता है, रेंगने वाला जानवर, और उसकी दुम में जो ऊपर को ऐसे उठी हुई होती है उसके अंदर डंक मौजूद है। और खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं? ना सिर्फ सांपों को कुचलो बल्कि बिच्छुओं को भी कुचलना है। हमने सांप को तो देखा है, हमने सांपों की तरफ तो तवज्जो दी है, लेकिन जो बिच्छू हैं उनकी तरफ हमने तवज्जो नहीं दी है। वो भी उतना ही असर रखते हैं जितना सांप असर रखते हैं, उतना ही बिच्छू भी असर रखते हैं। और बिच्छू किस तरह के होते हैं?
शायद अंडे की मानंद। अगर तुम्हारे, यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर तुम्हारा बच्चे तुमसे अंडा मांगे तो तुम में कौन है जो उन्हें पत्थर दे, या रोटी मांगे तो बिच्छू दे। इस तरह की मिसाल खुदावंद यीशु मसीह ने दी। और सांपों और बिच्छुओं को क्या करना है, कुचलना है। और कैसे कुचलना है, क्या सांपों को हाथों में पकड़कर, क्या बिच्छुओं को पकड़कर पांव के नीचे रौंदना है? नहीं, लफ्जों के जरिए से, वर्ड्स के जरिए से, ईमान के जरिए से, कलाम के जरिए से इब्लीस के खिलाफ बोलना है, जो मायूसियां लेकर आता है, जो गुनाह लेकर आता है, जो बीमारियां लेकर आता है, जो हालात खराब करता है, जो मौत को लेकर आता है। उन सांपों और बिच्छुओं को कुचलना है। जब उम्मीद नजर नहीं आती है, जब बीमारी नजर आ रही है, जब हम मौत की तरफ दौड़े जा रहे हैं, उस वक्त ईमान से यीशु का नाम लेकर उस इब्लीस को कुचलना है जो हमें आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ लेकर जा रहा है। उस मौत को कुचलना है, उस बीमारी को कुचलना है, उस तारीकी को कुचलना है, उस इब्लीस के कामों को कुचलना है और कलाम के जरिए से कुचलना है। हालेलुया। और अगर आप नहीं कुचलेंगे तो इब्लीस आपको कुचल डालेगा। अगर बेरोजगारी है, उसको कुचलें यीशु के नाम से। अगर बीमारी है, उसको कुचलें यीशु के नाम से। अगर कर्जा है तो उसे कुचलें यीशु के नाम से। अगर बच्चे नाफरमान है, उस नाफरमानी को कुचलें यीशु के नाम से। अगर बच्चे नशे के अंदर है, उस नशे की स्पिरिट को कुचलें यीशु के नाम से। अगर बच्चे गुनाह पर गुनाह करते जा रहे हैं, वो चर्च नहीं आते हैं, वो दुनियादारी के अंदर फंसे हुए हैं, इब्लीस ने उनके ज़हनों पे के ऊपर कब्जा किया हुआ है, तो हमने असल में इब्लीस को कुचलना है, सांपों को कुचलना है, बिच्छुओं को कुचलना है, क्योंकि हमारे पास इख्तियार मौजूद है। हालेलुया। अगर इब्लीस ने तंग किया हुआ है, अगर इब्लीस ने पकड़ा हुआ है, इब्लीस रात को सोने नहीं देता है, गंदे ख्यालात आते हैं, बुरे ख्यालात आते हैं, सर के अंदर दर्द रहती है, बॉडी के अंदर पेन रहती है, तो क्या करने की जरूरत है? उस इख्तियार को जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दिया है, उसका इस्तेमाल करते हुए हमने इब्लीस को रौंदना है, कुचलना है और मसीह की सलीब को तकते हुए आगे आगे बढ़ते चले जाना। हालेलुया। आज कुचले बीमारियों को, आज कुचले मायूसियों को, हालेलुया। आज कुचले उस गुर्बत को, आज कुचले उस मुस्तकबिल को जो हमें तारीक नजर आता है। जब आप अपने मुस्तकबिल को खुदा के हाथों में देंगे तो फिर हम बाइशे बरकत होंगे। अगर बच्चों की एजुकेशन में रुकावट है, बाज़ औक़ात लगता है शायद यही साल है, बच्चे इसी साल स्कूल जा सकेंगे, आगे कुछ नजर नहीं आता है, तो इस मायूसी को कुचलें। हालेलुया। जब आप कुचलेंगे, खुदा रास्ते बनाता चला जाएगा। अब खुदा को कहने की जरूरत नहीं है, खुदावन तू ये कर। खुदा ने जो कुछ सलीब पे करना था उसने कर दिया है। खुदावंद यीशु मसीह ने तमाम कर दिया। उसने कहा तमाम हुआ। इसका क्या मतलब है? उसने इब्लीस के सर को कुचल दिया है। इब्लीस एक ऐसे सांप की मानद है जिसके सर को कुचल दिया गया। उसकी बॉडी का बाकी हिस्सा तो मौजूद है, शायद वो हरकत भी कर रहा है और ईमानदार देखकर पीछे हट जाते हैं कि आगे सांप है और हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन याद रखें, वो एक ऐसा सांप है जिसके सर को मसीह ने कुचल दिया है। उसके अंदर जहर नहीं है, उसके जहर को मसीह ने निकाल दिया है, उसके सर को कुचल दिया है। अब वो काट नहीं सकता है, अब वो डंक नहीं मार सकता है, उसके असर को मसीह ने खत्म कर दिया है। लेकिन उनके लिए जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया है, जिन्होंने तौबा की है, जो दिन रात दुआ में रहते हैं, उनके पास ये अथॉरिटी मौजूद है। हालेलुया। घर में बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही। आपने कितनी दफा दुआ की है? आपके सर के अंदर दर्द रहता है, आपने अपने सर पर हाथ रखकर कितनी दफा दुआ की है, ऐ सर दर्द मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, छोड़ मेरी बॉडी को।
कितनी दफा आपने कहा है आपका कारोबार नहीं चल रहा है, आपने बेरोजगारी को कितनी दफा डांटा है। हालेलुया। जब डांटेंगे उस अथॉरिटी को इस्तेमाल करेंगे जो खुदावंद यीशु मसीह ने दी है, तो इब्लीस को पीछे हटना पड़ेगा। आपके लफ्जों के जरिए से, आपके मुंह के अंदर बरकत है, आपके मुंह के अंदर आपके घराने की तब्दीली है, आपके मुंह के अंदर आपके शोहर की तब्दीली है, आपके मुंह के अंदर आपके बच्चों की तब्दीली है, आपके मुंह के अंदर आपके हालात की तब्दीली है, आपके मुंह के अंदर शिफा खुदा ने रखी है, आपके मुंह के अंदर बरकत मौजूद है। उन लफ्जों को इस्तेमाल करें, उस अथॉरिटी को इस्तेमाल करें, क्योंकि अथॉरिटी हर एक ईमानदार के पास मौजूद है। हालेलुया। लेकिन हम सोए पड़े हैं, हमें एहसास ही नहीं है, हम हालात के साथ समझौता कर लेते हैं। कभी तो खुदा बदलेगा, खुदा ने नहीं बदलना, आपने खुद बदलना है, आपने खुद अपने हालातों को बदलना है। अस्पताल जाने से पहले घुटनों के बल होकर दुआ करें, खुदावंद मैं इस पेट दर्द को डांटती हूँ यीशु के नाम से, खुदावंद मैं इन गुर्दों के पेन को डांटती हूँ यीशु के नाम से, खुदावंद मैं इस पेंडस की दर्द को डांटता हूँ यीशु के नाम से, इस दाढ़ की दर्द को मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से, टांगों के जोड़ों के दर्द को मैं डांटती हूँ यीशु के नाम से। अगर वो ना भागे, अगर आप शिफा ना पाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यीशु के नाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम में क्या पाई जाती है? कुदरत पाई जाती है। जब आप यीशु का नाम लेंगे, इब्लीस ठहर ही नहीं सकता है। हालेलुया। आपके पास अथॉरिटी है। हम ये कब समझेंगे? यीशु मसीह की सेकंड कमिंग होने वाली है, यीशु मसीह की दूसरी आमद होने वाली है, यीशु मसीह दोबारा अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है, लेकिन हम फिर भी अपने हालात से मायूस होकर पड़े रहते हैं। जॉब से मालिकों ने इनकार कर दिया, जी अपना बंदोबस्त कर लें, हम मायूस हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, पता नहीं कैसे गुजारा होगा। लेकिन याद रखें, एक दर बंद होता है तो खुदा 100 दर खोलने की कुदरत रखता है। मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए। कितना खुदा पर भरोसा करते हैं? इंसान पर भरोसा करते हैं या खुदा पर भरोसा करते हैं? अगर खुदा पर भरोसा करने वाले हैं, कभी आप मायूस नहीं होंगे, कभी आप खौफजदा नहीं होंगे। आदम खौफजदा हो गया, उसने कहा पता नहीं मैं क्या कर बैठा हूं। अगर माफी मांगता तो खुदा माफ भी कर देता, लेकिन एक मर्तबा भी आदम ने नहीं कहा खुदावंद आई एम सॉरी, खुदा मुझसे गलती होगी, खुदा मुझे माफ कर दे, मुझे बाग़ अदन से बाहर ना निकाल, खुदा मैं माफी मांगता हूं, खुदा मैं तेरे कदमों में गिरता हूं। उसने नहीं माफी मांगी और खुदा ने माफ भी नहीं किया। अगर माफी मांग लेता शायद खुदा माफ कर देता, लेकिन उसने नहीं मांगी। और क्या उसको मिला? अथॉरिटी को लूज करने के बाद क्या मिला? बाग़ अदन से बाहर, खुदा की प्रेजेंस से बाहर, खुदा की हुजूरी से बाहर, मेहनत, धुदकार, मिट्टी, पसीना, खून, दुख, दर्द, मौत, उम्र कम हो गई, कब्र उसको मिली खुदा से जुदाई के बाद, नाफरमानी के बाद। लेकिन वही आदम की नस्ल, उसके बेटे बेटियां जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, हालेलुया, सिर्फ ईमान लाने के वसीले से ना सिर्फ अथॉरिटी मिलती है, ना सिर्फ इख्तियार मिलता है, बल्कि कुछ और भी मिलता है। और वो क्या है? मेरे साथ निकालिए लूका की इंजील 10वां बाब। सिर्फ अथॉरिटी नहीं मिलती, सिर्फ इख्तियार नहीं मिलता, बल्कि और भी कुछ मिलता है। और वो क्या है? लूका की इंजील 10वां बाब 20वीं आयत। तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। हालेलुया। सिर्फ अथॉरिटी नहीं मिलती, सिर्फ इख्तियार नहीं मिलता, सिर्फ बदरूहों पर इख्तियार नहीं, बीमारियों पर इख्तियार नहीं, बीमारियों को भगाने की ताकत नहीं, इंजील सुनाने की कुव्वत नहीं, मुनादी करने का फजल नहीं, बल्कि इसके अलावा कुछ और भी। और वो क्या है? कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। हालेलुया।
हमारे नाम कहाँ पर लिखे गए हैं? आसमान पर लिखे गए हैं। आज मायूस ना हो, उस खुदा के दिए हुए इख्तियार को इस्तेमाल करें। आपके पास खिदमत है, हाँ कहें, एक वक्त आएगा, बल्कि वो वक्त शुरू हो चुका है कि मैं खुदा की कलाम की मुनादी करूंगा, मैं खिदमत करूंगा, मैं वर्शिप करूंगा, मैं प्रस्तुत करूंगा, मैं खुदा के नाम को जलाल दूंगा। हालेलुया। आप गुनाह करने के लिए पैदा नहीं हुए, आप मौत के लिए पैदा नहीं हुए, आप जहन्नुम जाने के लिए पैदा नहीं हुए, बल्कि आपके नाम किताबे हयात पर लिखे गए हैं, किताबे हयात में लिखे गए हैं। आपके नाम आसमान पे लिखे गए हैं। हालेलुया। खुदा ने आपको बीमारियों पर इख्तियार बख्शा। लूका की इंजील 9वां बाब पहली 2 आयत। लूका की इंजील 9वां बाब उसकी पहली 2 आयत। फिर उसने उन 12 को बुलाकर उन्हें सब बदरूहों पर इख्तियार बख्शा। हालेलुया। यह नहीं छोटियां बदरूहां ते इख्तियार बख्शा या वड्डियां बदरूहां ते इख्तियार बख्शा। और खेतरपाल आ गया, वो बड़ी वड्डी बदरू है। माई काली आ गई है, बड़ी वड्डी बदरू। सॉरी, माई काली नहीं कर रहा, काली देवी या जो भी है, बदरू है, गंदी बदरू है। सिर्फ इन नॉमिनेट नामी बदरूओं पर नहीं, हनुमान ते नहीं, हनुमान भी बदरू है। असी बड़े शौक ना वेखने हनुमान, वो चूहे उत्ते बैठा हुंदा है, गले च सप, ये बदरू है। जिन्ने इंडिया के देवी देवता सारे बदरू आइए, और राम राम जपदे भी बदरू जे। असी इंडिया दी फिल्मां च बड़ा बच्चे भी गा रहे होंगे ने, वो इंडियन फिल्मां विच राम राम नाम लै रहे होंगे, तो ये बदरू है और हमें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है। सब बदरूहों पर क्या किया? इख्तियार बख्शा और बीमारियों को दूर करने की कुदरत दी। हालेलुया। बीमारियों को दूर करने की कुदरत दी। हालेलुया। बीमारियों को दूर करने की क्या दी? कुदरत दी। कुदरत किसके पास है? आपके पास। आपको इस बात की खुशी नहीं है कि आपके पास कुदरत है? क्या आपको इस बात की खुशी नहीं है कि आपके पास इख्तियार है? बीमारी को जितना लंबा अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं, ये आपके पास है। उससे जितनी जल्दी पीछा आप छुड़ाना चाहते हैं, ये आपके मुंह में है, ये आपके इख्तियार में है। एक खुदा के खादिम ने कहा ईमान के साथ, मैं खुदा का बेटा हूँ, खुदा मेरे अंदर रहता है, खुदा की ज़िंदगी मेरे अंदर है, खुदा यीशु मसीह मेरे दिल में मौजूद है, मुझे कभी एक ज़ुकाम की बीमारी भी नहीं लगेगी। हालेलुया। ये ईमान से उसने कहा, और वो खादिम आज तक जिंदा है और उसने कभी खांसी भी नहीं की है, स्टिल अभी तक। हालेलुया। बीमारियों को दूर करने की क्या दी? कुदरत दी, और उन्हें खुदा की बादशाही की मुनादी करने और बीमारियों को अच्छा करने के लिए भेजा। हालेलुया। अगर आपने तौबा की है, पानी का बपतिस्मा लिया है, पाकरू से भरे हुए हैं, तो ये अथॉरिटी आपके पास है। और अगर आज ये अथॉरिटी आप लेना चाहते हैं, तो आज आपको तौबा करने की ज़रूरत है। आज आपको अपने गुनाहों का इकरार करने की ज़रूरत है। आज आपको अपने गुनाहों को तर्क करने की ज़रूरत है। आज आपको पानी का बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है। ये इख्तियार आपके पास है, ये अथॉरिटी आपके पास। आपको इब्लीस से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं, हालात से शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं, महंगाई से परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मुल्क के सियासी मुआशी हालात से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अथॉरिटी आपके पास है। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। अपने घर के हालात बदल सकते हैं, अपने पेरेंट्स को बदल सकते हैं, अपने शौहर को बदल सकते हैं, अपने बच्चों को बदल सकते हैं, अपने घराने को बदल सकते हैं, अपने घर की फिजा को बदल सकते हैं, क्योंकि अथॉरिटी आपके पास है। हालेलुया। सांपों और बिच्छुओं को क्या करो? कुचलो। सांपों और बिच्छुओं को क्या करो? हालेलुया। पास्टर डैनियल जॉन की तरफ से आप सबकी सलामती हो। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आप पास्टर डैनियल जॉन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। सो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि इसी तरह से इस चैनल को सपोर्ट करते रहें,
تاکہ اس زمین پر ہم خدا کی بادشاہی کو لا سکیں اور مسیح کے لیے روحیں جیت سکیں. سو ریکویسٹ ہے ضرور شیئر کریں تاکہ خدا کے نام کو جلال مل سکے. گاڈ بلیس یو.